الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم کو انسان بنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ایمان کی قدر یہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد برزخی زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر حشر کی زندگی شروع ہوگی. حشر کی زندگی میں اس کا زیادہ احساس ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کفار کو جہنم میں بھیج دیں گے اور کچھ لوگ اپنی بدعمالیوں اور برے کرتوتوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے تو کفار تانا دیں گے کہ تم لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی جنت نہ پا سکے، جہنم میں چلے آئے اور ہم نے تو نبی کے کلمہ کا انکار کیا تھا، تمہارا نبی تم کو نہ بچا سکا. طرح طرح کے تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے. تو اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ، جن لوگوں کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لو. چنانچہ فرشتے جب ان کو نکالیں گے تو حسرت و یاس میں روئیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم نامی کے مسلمان ہوتے تو آج ہم کو بھی جہنم سے نکال لیا جاتا. تو ایمان کی قدر و قیمت اس وقت سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کو ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اٹھا کر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کلامی کی، ہم کلامی کی اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کیا کہ اے اللہ مجھ کو کوئی ایسا ذکر بتا دیجیے، ایسا کوئی کلمہ بتا دیجیے جو خاص ہو میرے لیے، میں اس کو پڑھا کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تو سارے لوگوں کا کلمہ ہے، سارے نبیوں کو یہ کلمہ دیا گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں اور ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پورا وزنی ہو جائے گا اور جھک جائے گا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو یہی کلمہ دیا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا وزن اور اس کلمے کی حقیقت اور اہمیت اس وقت معلوم ہوگی. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے ایک کافر محنت کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن سارے کام اس کے سارے اعمال اکرت ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ لوگ میرے علاوہ میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یعنی جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کا شریک مانتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہاری مہمانی کے لیے جہنم تیار کیا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حرام ہو جائیں گے. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ ایک آدمی آیا اتیا بہت قداور ہوگا لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لوگ امان لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا میزان میں. آپ غور فرمائیں ایمان کی اس وقت حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کیا چیز ہے.
इसलिए ईमान की नेमत एक मुस्तकिल नेमत है, अच्छे खानदान की नेमत एक मुस्तकिल नेमत है। ईमान की नेमत के बाद अच्छे खानदान की नेमत, अच्छे माहौल की नेमत, दौलत खुद एक मुस्तकिल नेमत है। जिसके पास ईमान नहीं है सब बेकार है। दुनिया तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, दुनियावी जिंदगी में थोड़ा सा फायदा है, उसके बाद आखिरत की जिंदगी है अब्दुल आबाद की, वो तो एकदम बिल्कुल अकारत है, हमेशा हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा। इसके बाद खिलाफ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हमने उनके लिए जन्नत तैयार है। इसीलिए अगर किसी को अच्छे माहौल की नेमत मिल जाए, अच्छा खानदान मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब आप गौर कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को पेश किया, जब ला इलाहा इल्लल्लाह को पेश किया तो लोगों ने ईमान के बजाय कुफ्र को इख्तियार किया। उसमें आपका चचा भी था, अबू जहल, जो मक्का का सरदार था, और कुफ्र को इख्तियार किया। उतबा था, शैबा था, रबिया थे, बहुत सारे लोग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दी। आज देखिए दुनिया में रुसवा हुए और क़यामत तक उनका नाम जो है बेइज्जती से लिया जाएगा, रुसवा होते रहेंगे और आखिरत में तो उनका अंजाम बुरा ही है। और जिन लोगों पर ईमान पेश किया उन लोगों ने कबूल किया ईमान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। वो अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमातें थी। अब आप देख लीजिए दुनिया में इज्जत और सरबलंदी और आखिरत में जन्नत उनके लिए राह है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना, ईमान को तस्लीम किया, हर तरफ इज्जत और सरबलंदी और इज्जत के आला मकाम पर है। और जिन लोगों ने नहीं माना, आप देख लीजिए कितना बड़ा फिरौन गुजरा, खुदाई का दावेदार कारून, हामान, शैतान गुजरे, जन्नत में गए। कारून के पास खजाने की कुंजियां कितने कितने ऊँटों पर खच्चरों पर लेते थे, लेकिन आज देख लीजिए क्या। तो जिन लोगों ने नबी की बात को माना, नबी के फरमान पर कट गए, मर गए, मिल गए, शीशों पर सोना पड़ा तो शीशों सो पड़े, और सरिया में छलांग लगाना पड़ा तो सरिया में छलांग लगा दीजिए। आज उनकी नेकनामी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगी और ऐसे ही वो सरफराज रहेंगे। इसी तरीके से अमाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमल करने का हुक्म दिया। तो जिन लोगों ने नेक अमल को माना और नेक अमल किया, वो भी उनके लिए भी बहुत सारी फजीलतें हैं। इसी तरीके से अच्छे माहौल की होना, अच्छे खानदान को होना। अब आप देख लीजिए किसी कूड़े कबाड़े के पास आप बैठे हो, यहाँ से बदबू आएगी तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप ऐसी जगह है जहाँ फूल और फुलवारियाँ लगी हैं तो वहाँ से महक आएगी कि नहीं। सोबते साले तुरा साले तुना, सोबते ताले तुरा ताले तुना। कमीनों की सोबत में आओगे, अच्छे माहौल को छोड़कर गैर खराब माहौल में जाओगे तो तुम भी खराब हो जाओगे, इसलिए कि वो चीज तुमको नुकसान पहुंचाएगी। हदीस शरीफ में आता है अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू, तन्हाई बेहतर है भले साथी में, वल जलीसु सालिह खैरुम मिन अल-वहदा, और एक साथी बेहतर है तन्हाई से। इसलिए अच्छे खानदान की नेमत ये भी मुस्तकिल नेमत है, दावत का होना ये भी एक बड़ी मुस्तकिल नेमत है। मुसलमानों की तबाही का एक समय ये भी है, काफ़िर खबर हो या पूरा कुफरा, करीब है कि खबर कुफर हो जाए। दौलत होगी आप सही इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े सवाब को आप कमा सकते हैं, वरना आप मजबूर हो। इन नेमतों की कदर करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अगर आप इन नेमतों की कदर करेंगे, लेकिन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं इजाफा करता रहूंगा। और इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करते रहोगे तो ये नेमतें सब कर ली जाएंगी। हमारी नानाकियों के बावजूद, हमारी बदअमालियों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर नेमतों की बारिश कर रहे हैं। याद रखिए ये बात, नाशुक्री सिर्फ इसका नाम नहीं है, इससे हम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। नाशुक्री से बिदाई होती है, आपकी आसान हो गई, घरों में बैठा पड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, ये भी अल्लाह की नेमतों पे जो अल्लाह ने आपको ताकत दिया, बदन में आप मस्जिद जब करा सकते थे, नहीं आए, अल्लाह ने आपको मदरसा दिया है, आज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी नाशुक्री है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और लोग पर तो सबसे सख्त वही से हमारे हैं। और जिन लोगों ने मान लिया, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, आप देख लीजिए शेर की तालीम में जो मक्का की घाटी थी,
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हिसाब के साथ बंद कर दिया गया। दरख्तों के पत्ते और घासों के खाने पर मजबूर थे, बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे, लेकिन कभी हजरत अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सारी दौलत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर्व कर दिया। अब आप देखिए अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या मकाम है। आज हजारों लड़कियां आपके नाम पर नाम रखने को तैयार हैं, लेकिन जरा फिरौन एक काफिर भी फिरौन के नाम पर अपना नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। उनको छोड़ दीजिए। हजरत हलीमा सादिया दुनिया जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो यतीमे की हालत में थे, अभी आप पेटी में थे, आप अपनी अम्मा की वालिदा मोहतरमा के बदले मुबारक में थे कि आपके वालिद मोहतरम का हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। आप आए तो यतीमे की हालत में थे। क्योंकि मक्का का रवाज था कि कुरैशी लोग अपने बच्चों को देहात में भेज देते थे तो उनकी जुबान अरबी साफ हो जाती थी और सेहतमंद हो जाते थे, लेकिन ये बच्चा यतीम था। सारी दाइयां आई और मादारों के बच्चों को लेकर चली गई। हजरत हलीमा सादिया आई तो पता चला कि ये बच्चा यतीम है, वो भी वापस हो रही थी। अपने शौहर से पूछा और जाकर ले लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जान जाहिर होने शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे वो बहुत पीछे थी, लेकिन ऐसी और बहुत कमजोर थी, लेकिन वो ऊँटनी इतनी तेज रफ्तार से जा रही थी कि आगे वाला काफिला समझ रहा था शायद के लुटेरे आ रहे हैं। गर्दा उड़ाते हुए बहुत तेज रफ्तार से और जिन बकरियों के घरों में दूर खुश हो चुके थे वो ठंड दूर से भर आए और जहाँ बिल्कुल पौधा नहीं था, बिल्कुल खुशहाली थी, जहाँ ऊँट चलने जाते थे सब हरियाली हरियाली हो गई। हर तरह से नूरानियत महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहजात जाहिर होने लगे। ये मेरे कहने की बात थी कि बहुत सारी दाइयां आई थी, आज उनका कोई तस्करा नहीं मिलता है, लेकिन हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दूध पिला दिया था। आज जिस एहतराम से मुसलमान उनका नाम ले रहे हैं और कितनी औरतें हलीमा सादिया के नाम पर हैं, आज पूरी मुसलमानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हजरत हलीमा सादिया पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना, चाहे वो ईमान के रास्ते से हो चाहे अमान के रास्ते से हो, हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी है। अगर जिन लोगों ने नहीं माना, आप देख रहे हैं दुनिया भी गई और आखिरत में गई। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा किराम की शान और सिफात हम सबके अंदर अता फरमाए, अपने औलिया और दोस्तों की शान और सिफात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।